होंगी तो देख, नहाए धोए नहीं अभी तक, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट, है ना? आपको तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बट इट इज अ नाइस जेस्चर, या इट है इज ना? इनको सबको प्रोत्साहन मिलता है, और इसके इनकी वजह से कितने लोगों को और प्रोत्साहन मिलता बिल्कुल 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 सर। है ना? चल, Thank देख, मैं भी तक तो हारा नहीं, देख तेरे साथ चलता जा रहा हूँ। हाँ क्या सर। किरण, है ना? चल। यस। हो राइट। you. या ओवर टू यू निशु। Yeah, thank you. Very good morning. Good morning, everyone. I'm Dr. Manisha Soni here. And first, let me wish everyone a very, very happy Women's Day. Before we begin, a deep gratitude to Master Hanneman, gratitude to Segal Surji, gratitude to all our mentors, and of course, Dr. Liaquat Namole, our very beloved Guruji, a friend, guide. Just to share a few lines about PHF, it is actually the baby of Dr. Liaquat, and it is based on his vision to really educate so many doctors with a lot of learning about homeopathy. And towards that, this is one step, like celebrating Women's Week, where we are going to listen to so many different speakers and really learn from all of them. So towards this, towards the beginning, we have wonderful speakers. We are beginning from today, and so let's all clap and begin the Women's Day celebration with a big bang. Welcome everyone. Thank you, Segal sir, to be a part Hmm. of this. Thank you, Liaquat, for giving us this wonderful platform. So over to Dr. Deepa. Yes. Good morning, doctors. Good morning, sir. Good morning, Segal sir. Good morning, all of you. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF. Today we are here to celebrate Women's Week. Happy Women's Day to all the beautiful women in our group. This day is a global day celebrating social, economic, cultural, and political achievements of a woman. And we know that women's strength, wisdom, and kindness make a huge difference. Today is the first day of our celebration, and we have a great speaker. We have Dr. Mansi Patil with us. We चल have दे Dr. बेटा। Mans we have Dr. Mansi Patil with us to celebrate our first day. We all know her because of her daily rubrics. Dr. Mansi Patil. Mansi ma'am has completed BHMS from Venutai Yashwantrao Chavan Homeopathic Medical College from Kolhapur in 2003. She is in the world of homeopathy since 20 years. She started her practice of homeopathy from a small village of Konkan. Then she shifted to Mumbai at Taloja. At her Taloja's clinic OPD also, she has organized many camps for her patients. And now she is in Kolhapur, and also here also she is working for homeopathy. We know her as she makes our each and every morning beautiful with different rubrics. Her understanding of homeopathic rubrics is very deep and she makes each and every rubric easy for us. With the help of her rubric study, many cases are solved, and she also get many feedbacks from different doctors. So now, without wasting much time, I welcome Dr. Mansi Patil, and I request her to share her knowledge with us on this platform today. Thank you, Dr. थैंक यू। Mansi Patil. थैंक यू दीपा। Mansi, with your permission, can I say few words? Yeah, thank you. See, but see, guys, the best thing that I feel about being born in Maharashtra and being a Marathi man is when in the Western worlds, when the women has to write a poetry or write anything in literature, they had to take the name of a man. They would write with a proxy name of a man, okay, as a male. But at this in the same era in Maharashtra, poets like Bainabhai Chaudhary were the stars. They were the stars. Second, why we call ourselves Maharashtra is because the mother of a great Shivaji Maharaj, she was the founder of Maratha Empire. थर्ड थिंग, इन महाराष्ट्र हम लोग एक दूसरे को माउली बोल के बुलाते हैं. दैट इज द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र.
Okay, and the best part of हिंदुस्तानी संस्कृति is हम लोग हमारी जमीन को मदरलैंड बोलते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में फादरलैंड बोलते हैं। तो हमारा जो एशिया है उसमें हम लोग मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। तो सो मच ऑफ इतना गौरव हम मातृशक्ति का, स्त्री शक्ति का करते हैं। तो ऐसी भूमि में हम जन्मे हैं, तो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और मेरी ये जो आप इस बार जो हम लोग ने डिफरेंट किया है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ वन डे celebration, we are going to celebrate the whole week, where we're going to have in the beginning our Bachchan, Dr. Mansi Patil is there, then Padma is going to be there। शोलापुर के अंदर, मोहोल के अंदर जो प्रैक्टिस करती है, जिसको किडनी स्पेशलिस्ट बोला जाता है, वहां पर पद्मश्री शेंडे, वो भी मेरी एक छोटी बहन है, प्यारी सी। और फिर उसके बाद पम्मी है, प्रमीना लेहरा, पंजाब वाली मेरी शेरनी। उसके बाद अनीता आएंगी, अनीता बजाज, एवरीबॉडी वी ऑल नो। देन नीलम दीदी, नीलम अवतार सिंह, हमारी सबसे सीनियर मोस्ट होम्योपैथ है आज की तारीख में इन विमेन, एंड जिसका भी डेली रूब्रिक्स बहुत फेमस है, जिसके यूट्यूब चैनल भी बहुत फेमस है। फिर उसके बाद मेरी बहन आएगी, मनीषा कपूर सोनी, जिसको आपने सुना, डॉक्टर मनीषा सोनी। शी इज द प्रिंसिपल ऑफ विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। शी इज बीन माय क्लासमेट सिंस 11th स्टैंडर्ड। Throughout we've been together, mashallah। Then my child Pranita is going to be there, Pranita Patil, सब लोग जानते हैं, जो सारे अपने ग्रुप्स का और मेरे कोर्सेज का और बुक्स का ध्यान रखती है। उसके बाद डॉक्टर शिल्पा केलकर, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स है फ्रॉम पुणे, एंड शिल्पा केलकर इज वन ऑफ द फेमस, वेरी फेमस होम्योपैथ्स ऑफ इंडिया, इफ यू ऑल नो हर। जो अपने राइटिंग के, जो अपने आर्टिकल्स के लिए बहुत जानी जाती है। और इसके लिए इस बार हम लोग सारे के सारे लेक्चर जो है विमेन के रखने वाले हैं, और इंशाल्लाह आपको और कुछ सरप्राइजेस हम बताएंगे ये खत्म होने तक, पूरी सीरीज खत्म होने तक। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको वुमेन्स डे की दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आज ये बस पहली बार मैं बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह अभी आखिर तक सिर्फ फीमेल्स ही बोलेंगी। पूरा हफ्ता बने रहिएगा, इसके बाद हम इसको यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे। लेकिन जो मजा लाइव में होता है, जो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो लाइव लेक्चर का ही होता है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि बने रहिए और दोस्तों तक के मैसेज पहुंचाइए। लिमिटेड सीट्स होती है हमारी, 100 सीट्स होती है। चूंकि हमारा जो जूम का वर्जन है उसमें 100 सीट से हम लोग कर सकते हैं। तो फिर बाद में ये ना बोलिए कि हॉल वाज फुल। तो आज डॉक्टर मानसी इज ब्रिंगिंग फीस्ट ऑफ लवली मेडिसिन, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन आज उसका एक बहुत अलग फैसेट आपको देखने को मिलेगा। इस पूरी सीरीज में पद्मा इज गोइंग टू टॉक अबाउट सास बहू, Pranita is going to talk about father-daughter relationship, Manisha is going to talk about बहन बहनों के रिलेशनशिप। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि ये पूरे वुमेन्स वीक के अंदर हम थोड़ा सा फीमेल की समस्याओं को समझे, और इंटर रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो भी पंगे आते हैं मेरी भाषा के अंदर, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए, और प्लीज अपने मोबाइल को क्या कहते हैं उसको, म्यूट कर लीजिए बीच में। मैं जानता हूँ कि सबका अभी ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है, लेकिन प्लीज लेक्चर चल रहा है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हम मेंटेन करेंगे, और इंटरेक्शन जरूर करेंगे, सवाल जरूर पूछेंगे, और स्पीकर्स को टेस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ओवर टू यू मना, ऑल द बेस्ट बेटा। Thank you so much. Thank you so much, sir. Good morning, everyone. I wish you all the ladies here and all the men also very, very happy International Women's Day. And I feel fortunate to be here on this morning to share something what I have learned through these years. So first of all, thank you, Sanjay Sehgal sir, for blessing us. And thank you, Liaquat sir, for creating such a platform so that we can uh, get here and share whatever knowledge, little knowledge we have. So, अगर कुछ गलती होती है मुझसे तो वो मेरी है, और जो भी सिखाया है वो सर ने सिखाया है। तो थोड़ा सा जो आज एक रेमेडी, जैसे सर ने बोला कि पहले भी हो चुकी है अपने सीरीज में, लेकिन कुछ अलग चीजें मुझे
मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है इस रेमेडी के साथ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले हम दो केसेस हैं, एक वन बाय वन मैं केसेस बताऊंगी, फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर रेमेडी के बारे में थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट केस इज, एक लेडी है, उसकी अ, उसको सोरियासिस हुआ था, प्लांटर सोरियासिस, पाँव के दोनों पाँव के इस पे उसको सोरियासिस हुआ था, वो पूरा ब्लैकिश हो चुका था। तो वो जो है मेरी सिस्टर है, सिस्टर की नेबर है। तो उसको कहीं से मतलब बातों बातों में उसको पता चला मेरी सिस्टर से कि आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन। तो उसने बोला कि मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। तो वो आई, फिर बताया मुझे कि यहाँ पे ऐसे सोरियासिस वगैरह हो चुका है, पूरा ब्लैक हो रखा है, और अभी इसको क्या करना है आप, मतलब ट्रीटमेंट करना तो है मुझे, तो कैसे करेंगे, क्या आप मेडिसिन कैसे, बताओ आप क्या करना है वगैरह। तो मैंने बोला ठीक है, तो बताओ आप कि उससे आपको क्या परेशानी हो रही है या फिर क्या अड़चन आ रही है। तो वो बोली कि अड़चन मतलब कि अभी क्या, पाँव में है तो उसको वो पूरा ढक के रखना पड़ता है सॉक्स वगैरह पहन के, क्योंकि हम लोग किचन में काम करते हैं और इधर उधर वो लग सकता है। तो वो तो है एक प्रॉब्लम। और दूसरी और एक प्रॉब्लम उसके साथ उसने बताई कि चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होती है मेरी। तो बहुत इजीली, मतलब इतना चिड़चिड़ होती है कि पूछो मत, मैं कुछ बहुत ज्यादा मतलब चिड़चिड़ करती हूँ। और स्पेशली मेंसेस के दौरान बहुत ज्यादा होती है चिड़चिड़ मेरी। तो मैंने बोला और किस बात पे चिड़चिड़ होती है, तो बच्चे भी जो है वो काम ठीक से नहीं करते, अपने स्कूल का काम है, या फिर हस्बैंड भी अगर उनको बोला कि मैं काम कर रही हूँ, मतलब मेरा कोई कॉल है, तो वो भी वर्किंग है लेकिन ऑनलाइन वर्क करती है। तो बोले कि अगर मैं कुछ, मेरा कुछ वर्क चल रहा है तो उन्होंने बच्चों को देखना चाहिए, संभालना चाहिए, तो वो मैं उनको बोलती हूँ तो वो नहीं करते, फिर मुझे और गुस्सा आ जाता है, तो और चिड़चिड़ मेरी बढ़ती जाती है। मैंने बोला ठीक है, फिर चिड़चिड़ अगर होती है तो फिर क्या होता है, मतलब वो टाइम तुम क्या करना पसंद करती हो। तो बोली कि कुछ नहीं, मुझे शांत रहना अच्छा लगता है, तो मैं किसी से बात नहीं करती, थोड़ी देर के लिए अपने आप चुप बैठ जाती हूँ, फिर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर मैं वापस काम पे लग जाती हूँ। तो मतलब गुस्सा, मतलब कितना गुस्सा कितनी देर तक रहता है। तो बोलती हूँ बच्चों को मैं गुस्सा करती हूँ तो फिर थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा मुझे खुद को ये महसूस होता है कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन गुस्सा तो आता है ना, ये बच्चे ठीक से मतलब समझते नहीं है, सुनते नहीं है। तो ये सारी उसकी बातें थी। और उसने मुझे पूरा मतलब उसकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो सब बताई, और उसका जो हस्बैंड के साथ रिलेशन है, मतलब जो भी फिजिकल वगैरह भी है, तो वो भी उसने अच्छे से मुझे सब कुछ बताया, मतलब पहली ही मीटिंग में। तो ऐसी, और एक बात उसकी मैंने ऑब्जर्व की थी, जब भी मैं दीदी के घर पे जाती हूँ तो वो क्या करती है ना, फोन पे बात करती है, बहुत ज्यादा उसको फोन पे बात करना रहता है। तो वो जब कॉल आता है तो वो बाहर आके कॉल करती है, मतलब कॉल पे ऐसे पूरा रोड पे वगैरह चल के, या फिर अपने घर के इसमें बालकनी जो है, पोर्च रहता है आगे का, तो वहां पे जाके वो बड़े बड़े आवाज में बात करती रहती है। तो उसका उसको कुछ फर्क नहीं गिरता है। मेरी दीदी बोलती थी कि कितना जोर से ये बात करती है, ये मतलब ठीक नहीं लगता वगैरह ऐसा। लेकिन उसको उसका कुछ नहीं है, फर्क नहीं गिरता उसको, तो वो अपनी अपनी रहती है ऐसे। तो ये पहला केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा केस भी साथ में बोलूं या फिर हम ये पहले डिस्कस करेंगे। हेलो। हेलो। कोई है? हाँ, बहुत लोग हैं। एक एक कर डिस्कस करते हैं, ओके फिर एक एक ही डिस्कस करेंगे। हाँ, ठीक है, बताइए फिर। what is Kriti saying? दिस केस ओनली। हाँ, तो what is she wants to say? Just ask her. यस,
कीर्ति। क्या सवाल है उसका? पूछ कृति से, क्या सवाल है? पूछ ले, हिंदी में पूछा है तो। Yeah, ma'am, कीर्ति we can discuss this case actually. ओके, Then बताओ आपका क्या Yes, इंटरप्रिटेशन? Kriti, ask what is the question. Kriti, what do you feel about this case? You can discuss. so at this moment, from the things I have got, she's loud and all, and चिड़चिड़ वगैरह वो जो बोला तो मेरे को थोड़ा सा सेपिया काइंड्स लग रही है, मतलब hormonal issues and other things. तो I mean, it depends और क्या आता है after the case, the history. What other remedies do you feel are like sepia, Kriti? Like cases could be one. Okay. So what exactly you mean by sepia kinds? Like which remedies do you feel are in category of sepia? So sepia comes as a woman remedy, first of all. A lot of hormonal issues when women go through the menstrual cycle and all. So that So I understood. yeah, That yeah. we understood, Kriti. Hmm. You said sepia kind. So you must be Hmm. having some group of remedies in your mind, right? Who are like sepia. So one I said is like cases also comes up, Okay. and Okay. Ignatia is there, hysterical females and all. When depends on what more history I would require. So something more about her. So you require more history. This What? is the beauty of our mind method. Okay, you be with us, Kriti. Yeah, sure, Inshallah, you will crack the case within 5 or 10 minutes max. Not sure. more than 10 minutes. We don't require more than 10 minutes, except very deep cases, like otherwise, like 1 out of 100, we require 20 minutes. Otherwise, we crack the case in 5 to 10 minutes. No more than that. Yeah, So be happy with to us, learn. Kriti. Be Yeah, with sure. us. Be with us. Yeah. We will train you. Talk to Dr. Pranita. Give your number to Dr. Pranita. Okay, Yeah, please do that. Okay. We no, would sure. love to train you better. Where do you practice, Kriti? So I'm from Bombay. I'm in Great. Mumbai. Yeah. Perfect. Then we are neighbors. Good. Okay. Yeah. Anybody else? Please, it's a very interesting remedy. Guys, you're going to learn Good something new. morning, sir. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, actually, this patient is suffering from plantar psoriasis. Then actually, the main actually वो क्या बोल रही है कि अब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होती है, मतलब अभी इसको किचन का काम करना पड़ रहा है, एंड वो वर्किंग लेडी भी है ना। तो वो क्या बोल रही कि अभी उसके अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है, मतलब वो जैसे बोलती है कि वो सब नहीं होता है तो उसको चिड़चिड़ होता है, और क्या बोल रही कि और उसको मेंसेस ड्यूरिंग भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ होता है। ऐसे ये क्या बता रही है, मतलब इसका रिएक्शन कैसे रहता है कि वो रेस्ट डिजायर में भी है कि मतलब थोड़ी देर ये शांत रह जाती है, और वो खुद जैसे कि वो ज्यादा अगर बोल देती है बच्चों को नहीं तो हस्बैंड को, तो उसको ऐसे लग रहा है वो रिप्रोच भी कर रही है खुद को, रिप्रोचिंग वन सेल्फ। तो ऐसे मेरे मेरे माइंड में दो रेमेडी है, मतलब वो रेस्ट लेती है फिर से काम पे लग जाती है, एक नक्सफॉर्म का एक फील तो है ही है, और दूसरी चीज है ना, मुझे कैली सॉल्व का भी लग रही है, जैसे कि आप सेकंड पार्ट में जैसे बोल रहे कि वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है पहली बार में, कि वो अपना सभी चीज वो बता भी दी है, मतलब ऐसे कम्युनिकेटिव एफेबिलिटी वाला, ये बाहर जाके भी बात करती है। ऐसे आप जो बता रहे हो ना, मुझे थोड़ा एक मतलब रिप्रोच भी कर रही है, तो एक मिनरल वाला एक कैली सॉल्ट का भी फील आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मिनरल क्या, कौन सा सॉल्ट? हाँ जी मैम। हेलो, हाँ क्या बोला आपने, मिनरल? कौन सा मिनरल? हाँ मतलब मुझे ऐसे कैली सल्फ ऐसे लग रही काली है सल्ट, थोड़ा, ओके मतलब ओके। कैली सल्फ लग रही है, मतलब बहुत कम्युनिकेटिव है, एफेबिलिटी है, मतलब ऐसे एक एक सिटिंग में सभी बता दी, यस, एक ओके ऐसे थॉट है मैम। थैंक यू। ओके। और कोई? बहुत अच्छा किया आपने एनालिसिस। और कोई बोलना थैंक चाहता यू। है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैंने कुछ सेट ऑफ ब्रिक्स लिए हैं, मैं बताऊं बताइए। जो मुझे केसेस में लगे। फर्स्टली फास्टिडियस, देन इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी टैसिटर्न, मतलब वो जब चिड़चिड़ कर लेती है तो एकदम शांत बैठ जाती है, तो उस वजह से मैंने वो लिया। इरिटेबिलिटी ट्राइफस फ्रॉम,
छोटी छोटी बातों के लिए वो चिड़चिड़ापन हम्म, उसका आ जाता है। तो yes, मैम मेरी दो रेमेडीज आ रही थी, एक काली सल्फ एक पल्सटीला भी आ रही थी, और सल्फर भी आ रही थी, मतलब जो ये चारों को कवर कर रही थी। ओके। बट काली सल्फ और मोर पल्सेटिला। हाँ, मोर फॉरवर्डेड हुआ काली सल्फ, क्योंकि मैम जो एंजाइटी अबाउट द फैमिली और वो जैसे वो करना चाहती है उस तरह, तो हम्म। मोर फॉरवर्ड मैम काली सल्फ। ओके, ठीक थैंक यू मैम। है। ओके, और कोई? हेलो। हेलो। तो आई थिंक नेक्स्ट केस हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर रेमेडी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सेम रेमेडी है तो फिर वो रिवील हो जाएगा। तो उससे अच्छा मैं नेक्स्ट केस बोल देती हूँ, उसके बाद ही हम दोनों का एक साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो अभी तक के काली सल्फ और पल्सेटिला, सेपिया, इग्नेशिया, लेकेसिस, ये रेमेडीज आई है। तो इन सब का थोड़ा थोड़ा है इस रेमेडी में। तो जैसे लास्ट लेक्चर में भी सर ने बोला था वो, कि ये छू कर जाती है बहुत सारे मेडिसिन को। तो ठीक है, मैं सेकंड केस बोलती हूँ। ये भी एक लेडी की केस है। लेडी मतलब बच्ची है, अभी 1 साल उसको शादी होके 1 ही साल हुआ है, 28 ईयर्स की है। तो कहीं से उसने उसकी सिस्टर ने मेरा कुछ वेबिनार वगैरह देखा था, तो उसने बोला कि आप मैडम से बात कर लो, क्योंकि यहाँ नजदीक में उसका विलेज है। तो उसने मुझे मैसेज किया, लेकिन बहुत दिन पहले मैसेज किया था, 5 6 7 8 महीने हो गए उसको। तो मैं उसको भूल भी गई, क्योंकि उसने मैसेज करके छोड़ दिया। वो बोली कि मैं आऊंगी, सब एड्रेस वगैरह वो सब हुआ। और वो बोली मुझे पर्सनली आपसे मिलना है, मैं फोन पे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे आपको सब कुछ ठीक से बताना है। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाओ। तो मैंने उसका एड्रेस वगैरह दिया, और उसके बाद में उसका कोई कुछ कांटेक्ट नहीं। तो मुझे लगा कि शायद उसने कहीं से ट्रीटमेंट लिया होगा। तो कुछ दिन पहले ऐसे हुआ, उसका कॉल आया, कॉल नहीं, मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, बताओ क्या बात है। तो उसका कॉल आया, तो कॉल पे हमने बात की थी। तो वो बोली कि मैंने बोला क्या हुआ, इतने दिन से तुमने एड्रेस लेके रखा था कहीं और ट्रीटमेंट करवाया, क्या हुआ? तो बोली कि नहीं, ट्रीटमेंट तो किया, लेकिन ऐसे उनके जो ससुराल वालों के फैमिली फिजिशियन है, वहां पे दिखाया था। तो मैंने बोला ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोली कि उसको मेंसेस का कुछ इश्यू है, तो मेंसेस ठीक से नहीं आते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कब से हो रहा है ये? तो बोली कि अभी 1 साल से, मतलब जब से शादी हुई है तब से ये हुआ है। उसके पहले तो सब ठीक था, मतलब शादी के पहले मेरे मेंसेस रेगुलरली आते थे, लेकिन अभी तब से ये मेंसेस का इश्यू हो रहा है। एक कभी 2 महीने में आते हैं, कभी 1 महीना में, या फिर 4 5 दिन 8 दिन बढ़ते जाते हैं, ऐसा होता है। और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं तो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वेट जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, फिर कहाँ दिखाया? तो बोले कि मेरी जो सासू माँ है, उन्होंने बोला कि हमारे फैमिली फिजिशियन को ही हम दिखाएंगे। तो वहां पे वो लेके गए थे मुझे। तो उन्होंने क्लिनिकली डायग्नोसिस किया है कि पीसीओडी है, ऐसा। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो बोला कि बताओ फिर क्या है, तुमको क्या तकलीफ होती है उससे, क्या अड़चन आती है? तो बोली कि मैडम ये क्यों हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये क्यों हो रहा है मुझे। तो पहले तो सब ठीक था, शादी के पहले तो मतलब ठीक था, तो ये अभी क्यों हो रहा है मुझे ऐसे? मैंने बोला तो क्या मतलब, उससे क्या तुमको फर्क होता है? नहीं, मुझे वही टेंशन है कि क्यों हो रहा है, पहले तो ठीक था तो अभी क्यों हो रहा है ऐसे। और बोला तो क्या करोगी तुम, जान के क्या करोगी, अगर तुमको समझ में आ गया कि ये इसकी वजह क्या है, तो क्या करोगी? तो बोली कि क्या करूंगी मतलब, अभी देखिए मेरा वजन तो बढ़ रहा है, मतलब ये पीसीओडी तो है, मतलब
कंफर्म 90% तो पीसीओडी ही है, जैसे वो डॉक्टर ने बताया। और फिर अगर ये ऐसे ही रहेगा तो कैसे चलेगा फिर? मुझे भी अभी चांस भी लेना है, मतलब कंसेप्शन के लिए भी मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। और डॉक्टर ने तो मेरा ये सोचना है कि पहले फिर इसको क्लियर करना पड़ेगा ना, ये अगर मेंसेस का इश्यू नहीं ठीक से क्लियर हो रहा है तो फिर मैं कंसीव कैसे कर पाऊंगी? तो अगर मुझे ये समझ में आता है कि हाँ ये इसकी वजह से ही हो रहा है, तो वो उसका मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाऊंगी, और उसके बाद मुझे कंसेप्शन के लिए जो है वो भी मैं ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाऊंगी। तो यही मेरा इश्यू है। मतलब ठीक है, और बताओ तुम्हारी कैसा है, मतलब फैमिली वगैरह कैसी है? बोली फैमिली तो ठीक है, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है। मैंने बोला कुछ ना कुछ तो रीजन होता है ना बीमार गिरने की वजह से। पहले अगर तुम बता रही हो कि पहले कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, तो अभी कहीं ना कुछ होता है, तो इसकी वजह से ही हम बीमार गिरते हैं। तो बताओ, मुझे जो भी है बताओ, क्योंकि मुझे मेडिसिन देने में आसानी होगी। ऐसा मैंने जब उसको कॉन्फिडेंस दिया तो उसके बाद उसने बोला कि पहले तो मैं मतलब अच्छा था, मतलब मैं बड़े सिटी में रहती थी, और वहां पे मैं जॉब भी करती थी अच्छे से, मतलब मेरा चल रहा था अच्छे से, मतलब मैं मजे से, मजा वगैरह भी था, बाहर में दोस्तों के साथ भी जाती थी ये वो। और फिर अभी ऐसा हुआ कि अभी मैं वहां से बड़े सिटी से छोटे सिटी में आ गई हूँ, तो यहाँ पे सब अलग हो गए ना। तो वो मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने बोला हस्बैंड के साथ कुछ है क्या, मतलब कुछ इश्यू है क्या? तो बोली कि नहीं, हस्बैंड तो मेरे अच्छे हैं, लेकिन तुमने फिर क्या है, कौन है जो तुमको, मतलब वहां पे ससुराल में कौन है जो उसको तुमको परेशानी कर रहा है? तो बोली एक ही तो होता है ना ससुराल में। तो मतलब ऐसे हंस के बोली, मतलब कौन है, सासू माँ? तो बोली हाँ। तो मतलब क्या है उनका नेचर कैसा है? तो बोली वो तो उनका ऐसा है कि जो उनके हिसाब से ही चलना चाहिए सब घर में। और कुछ बनाना भी है, कुछ कुछ भी करना है घर में, तो वो उनके हिसाब से ही होगा। तो मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन होता है कि वो जो है, सजेशन मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि आप बोलो ऐसा करो वैसा करो, लेकिन ऐसा नहीं है उनका। उनका हर चीज में मतलब वो अ, जितना चाहिए उतना क्वांटिटी में ही वो डालना चाहिए, या फिर ऐसे करना चाहिए कि उनके हिसाब से ही वो टेस्ट भी आना चाहिए, और वो काम भी उनके हिसाब से ही होना चाहिए। तो मैंने बोला तो फिर इसका तुम पर क्या असर पड़ता है? नहीं, फिर वो नहीं ना, वो थोड़ा सा दबाव ही लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। सजेशन मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं अगर मुझे बोला जाए कि मैं तुम ऐसे ऐसे करो, तो मैं वो काम मेरे हिसाब से कर दूंगी, लेकिन उनका है कि उनके हिसाब से ही करना है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है उनका दबाव लगता है। और भी ये भी बात थी कि आपसे भी मुझे बात करनी थी या मेडिसिन लेनी थी, तो वो भी उन्होंने नहीं करने दिया मुझे। वो बोले कि अ, हमारे डॉक्टर की दिखाना है, फिर उसके बाद तुम वो क्या बोलते हैं वो देखेंगे पहले, दूसरे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। तो इसलिए मैंने आपको कॉल भी नहीं किया था इतने दिन। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मेडिसिन तुमको देंगे और ठीक हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस। तो अभी बताइए इसमें क्या लग रहा है? यू कैन अनम्यूट एंड शेयर योर इंटरप्रिटेशन। किसी को भी कुछ बोलना है बोल सकते। मैम, ये जो लेडी है 28 ईयर्स की है, उसको मेंसेस नहीं आ रही है, मतलब जो भी चीज हुआ है मतलब 1 ईयर से हुआ है जब भी उनके शादी के बाद। देखिए कि अभी ये आपसे बात करना चाहिए। और बाद में क्या है कि उनकी सासू माँ जैसे बताई कि नहीं आपको, मतलब सासू माँ का थोड़ा एलिमेंट ऑफ डोमिनेशन है उनके ऊपर। जैसे सासू माँ बोली कि वो ही स्पेसिफिक डॉक्टर के पास दिखाना है, तो उनको वैसे ही करना पड़ रहा है। तो ये डोमिनेशन ये पक्का है। और वो जब भी आपको पूछ रही थी कि आप जैसे बताए कि ये क्यों हो रही है ना, उसका ऐसे ही कंसर्न था कि ये एंजाइटी डार्क इन में है। मतलब तो वो जैसे बता रही है, देखिए कि अगर मुझे अभी तो ये भी कंसीव भी करना है, जैसे वो बता रही है ऐसे लग रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाला भी ऐसे लगा।
है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो कंप्लाई भी कर रही है, मतलब वो इसके साथ ना एडजस्ट भी करना चाह रही है। मतलब अभी एक पहले जैसे कि जो शादी के पहले वो पूरा फ्रीडम में थी, लेकिन अभी यहाँ पे बड़ी शहर से आके, जैसे कि मुंबई में रहती होगी, मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी शहर में आती है तो जैसे कि एक जैसे ये रहता है ना कि एक फीलिंग जैसे रहता है कि उसका सब कुछ जैसे चला गया ऐसे वाला। तो उसको ऐसे मतलब ये थोड़ा लिमिटेड हो गई है ना। तो ऐसे मुझे एक लग रहा है कि ये वो एडजस्ट भी करना चाह रही है, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे कंप्लाई भी कर रही है, यील्ड भी कर रही है। मैं मुझे ये ट्रिटिकम लग रही है, ट्रिटिकम का एक फील। थैंक यू। यस, बहुत अच्छा एनालिसिस है। यस, डॉक्टर हेतल, आपको क्यों लग रहा है ट्रिटिकम? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मुझे भी ट्रिटिकम का ही फील आया, बिकॉज थ्रू एंड थ्रू वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगी कि अगर कंसीव पीसीओडी है तो कंसीव नहीं होगा तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब चीजों का सटीक ऐसे रीजन दे रही है। एंड सेकंड, वो अपनी यील्डिंग जो है ही और अपनी मदर इन लॉ के विशेस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। 6 महीने पहले आपसे अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन मदर इन लॉ ने बोला कि नहीं, आप अपने हम फैमिली डॉक्टर को बताते हैं, मतलब अपनी वो विशेस दबा भी रही है। और सो ये कंप्लाई टू द विशेस ऑफ अदर। सो मुझे भी ट्रिटिकम का फील आया। और दूसरा फील आया है मुझे फैल्कन टी। फैल्कन टी का भी फील आया मैम, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लिबर्टिनम, मतलब फ्रीली रहने वाली लड़की थी, मतलब बड़े शहर से छोटे शहर में आई, इसलिए अभी उसका सब, अभी वो ये स्टेज में है कि उसकी कोई भी डिजायर फिनिश नहीं हो रही है। सो मुझे लिबर्टिनिज्म वाली लगी, लेकिन अभी वो सप्रेस्ड मोड में है। सो ये फेस में है अभी वो। मैं रूब्रिक्स तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फील वाइज फैल्कन भी एक फील आ रही है मैम। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कोई? हेलो। स्टेफी सगरिया, क्यों? क्यों स्टेफ लग रही है आपको? सप्रेस ऑफ इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा ओके, इसको कैसे समझेंगे आप? और भी बाकी सारी चीजें है ना, सप्रेशन तो है, एंगर सप्रेस, क्या सप्रेस हो रहा है? हेलो। मैरिज के बाद उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। मैरिज से पहले उसका साइकिल एकदम रेगुलर था, हम्म। तो इस वजह से भी स्टेफिस के लिए अच्छा। ओके। और कोई? हेलो। 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 डिस्क्लोज करते हैं, वन बाय वन एनालिसिस करते हैं इसका। जो पहली केस थी तो उसमें काली सल्फ बहुत लोगों ने बोला था। काली सल्फ मतलब फैमिली के लिए ओरिएंटेड है, इसकी वजह से। तो जो रुब्रिक्स मैंने लिए थे, मैंने जैसे उसको समझा था, तो लाउड है, तो लाउड का कुछ रुब्रिक मतलब इरिटेबिलिटी, एंगर वगैरह ये ले सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग एंगल मैंने लिया था। सबसे पहला रुब्रिक जो मैंने लिया था
तो उसके लिए सोशेबिलिटी लिया था, क्योंकि वो लेडी जो है वो घुल मिल जाती है ना इजीली, मतलब मेरी उसकी जान पहचान भी नहीं है इतनी, लेकिन वो इतना घुल मिल गई मेरे साथ। कम्युनिकेटिव तो है ही, लेकिन कम्युनिकेटिव से ज्यादा मैंने सोशेबिलिटी रुब्रिक लिया था। दूसरी बात कि सब उसने बता दिया, और जैसे बोला था कि बहुत ज्यादा वो बात करती है ना, मतलब बड़बड़ बड़बड़ चलता रहता है उसका। तो वो दो रुब्रिक मिला के एक रुब्रिक है लोक्वेसिटी वाइवेशियस, मतलब इतनी वाइवेशियस है वो, वाइब्रेंट बोलते हैं ना वाइवेशियस। तो लोक्वेसिटी भी है और वाइवेशियस भी है, तो ये एक रुब्रिक है लोक्वेसिटी वाइवेशियस। दूसरा डायरेक्ट रूब्रिक, जो डायरेक्ट जैसे सर सिखाते हैं कि सिंपल सिंपल जाना है, तो उसका क्या है, इरिटेबिलिटी है, इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग। तो और दूसरा किस चीज से उसको इरिटेबिलिटी होती है कि बच्चे ठीक से काम नहीं करते हैं, मतलब स्कूल का काम है या फिर हस्बैंड भी ठीक से काम नहीं करते, मतलब ठीक से मतलब कैसे, उसके हिसाब से, मतलब उसको ऑर्डर चाहिए, वो ऑर्डर में काम होना चाहिए, तो वो ऑर्डर में काम नहीं होता, या फिर वो लोग जो है वो उतना सिंसियरली काम नहीं करते। तो ये एक रुब्रिक है इरिटेबिलिटी इनसिंसियरिटी ऑफ अदर्स फ्रॉम, मतलब दूसरे लोग इनसिंसियरिटी से काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसको चिड़चिड़ हो रही है, हस्बैंड है या फिर बच्चे है, जो भी है घर में, तो वो सिंसियरिटी से काम नहीं कर रही है, तो उसको गुस्सा आ रहा है। दूसरा और एक रूब्रिक उसने मतलब वो जो बताई चीज की गुस्सा तो करती है, लेकिन फिर क्या करती है वो, उस पर रिपेंट भी करती है। तो मतलब उसको बुरा भी लगता है कि मैंने इतना गुस्सा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, मतलब गुस्सा आता भी है लेकिन रिपेंटेंस भी है। तो एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस। और और एक चीज जो उसने सही सही बताई, मतलब सारी चीजें वो उसने इतने क्लियरली बताई या फिर प्लेन एक्सेंट में बताई, तो मैंने उसको ये बोला था, ये रुब्रिक लिया था ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। हेलो, प्लीज म्यूट कीजिए, इसका चालू है। बोल बोल, मी स्क्रीन रेमेडी, शेअर करतोय. हाँ, हो, तुझे रुब्रिक्स टाकतात. हा, तुझा असिस्टंट आहे आज मी. हा. थैंक यू। सांग रुब्रिक्स सांग. ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, घेतला सोशॅबिलिटी, घेतलं सर्व घेतले मी आधी. तर सांग पुढे. अच्छा, हाँ झाले, इतकंच 4-5 केलं. रुब्रिक्स आहेत ना. हो. टाकू का, दाखवू रेपिटेशन टेबल. तो रेमेडी इज क्रिटिकम, तो सेकंड केस वाज एकदम इजी था, तो इसके लिए सेकंड केस चे पण रुब्रिक टाकले. एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, हा. एंजाइटी डार्किंग, हा. ऑब्जेक्टिव रिजनेबल, ओके. एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड. And they comply to wishes of others. हाँ, ते Yes. दाखव. हाँ. ओके. तो ये सेकंड केस में एक और रुब्रिक मुझे बहुत अच्छा मिला था, दैट इज एंजाइटी ऑपरेशन वे.
एंजाइटी एंझायटी ऑपरेशन आहे. यही ना? हा तेच आहे ते. घेतलं तुम्ही. Okay. हम्म. Yes. So this is triticum. तो सोरियासिस की जो केस है उसका तो पूरा मतलब अभी 1 साल से उसको चल रहा था, तो सोरियासिस तो उसका गया है. सेकंड केस का अभी बहुत सारे फॉलोअप्स आने बाकी है, तो वो जब ये आएंगे तो मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी बाद में. कौन सा रूब्रिक आपको चाहिए इसका मैसेज? तो ये केस में मुझे बहुत अच्छा ये रूब्रिक लगा था, एंजाइटी विथ ऑपरेशन. मतलब उसका जो दोनों चीजें एक साथ चल रही है. एक तो वो मदर इन लॉ का डोमिनेशन चल रहा है, मतलब वो ऑपरेस कर रही है उसको, मतलब वो दबाव उसको लग रहा है, और उसकी खुद की हेल्थ की एंजाइटी. तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट में भी है, एंजाइटी फ्यूचर है, बहुत सारे रिलेटेड रूब्रिक्स इस केस में है. दिस इज क्रिटिकम. थोड़ा सा उसको ये शेयर करूँ का मैं डिस्प्ले? दिसते का स्क्रीन? हो दिसतंय तर फुल स्क्रीन करा आता खाली जाऊन. हा. तो ग्रेटिट्यूड ये तो हो गया. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. So, जैसे हम लोग अभी साइकोडायनामिक्स को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें जैसे जीएनएम एक है बुक, और लीज बॉर्ब्यू करके एक ऑथर है, तो उनका भी साइकोडायनामिक्स का एक बुक है. तो वहां से कुछ चीजें मिली, तो उसमें रिलेट कर सकते हैं हम कि कैसा है. तो यहाँ पे सोरियासिस का जो है वो जीएनएम में बताया गया है, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है. तो वहां पे उन्होंने, जैसे उनके बुक में है, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज एक रहती है और हीलिंग फेज रहती है. तो उसमें अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, या फिर अलग अलग उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. तो सोरियासिस मतलब स्किन के लिए जो भी है, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बताया है, या फिर हिट मतलब कि अटैक कॉन्फ्लिक्ट, या फिर स्किन जैसे हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, तो स्किन का जो भी इशू आता है, तो उसमें हो सकता है कि बाहर से कहीं से अटैक होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है. और ये सोरियासिस का जो है वो हर जगह, मतलब कई सोरियासिस कहीं पर भी हो सकता है. तो उन्होंने बताया कि जो जगह पे, मतलब अगर हाथों पे हुआ है तो वहां पे कुछ जैसे हाथ से हम क्या काम करते हैं, या फिर पैरों पे हुआ है तो पैरों से हम चलते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. तो उसके साथ हम इसको रिलेट कर सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट को. ये जीएनएम का है. और दूसरा जो लिज बॉर्डू का है वो फियर ऑफ बीइंग हर्ट और डेडनिंग द सेंसेस ऑफ सेल्फ, रिफ्यूजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन फीलिंग्स. मतलब यहाँ पर भी वही है, हर्ट हर्ट होने का फियर रहता है. जैसे अटैक कॉन्फ्लिक्ट बोला, तो वहां पर भी मतलब स्किन जैसे प्रोटेक्ट ही करती है अपने आप को. तो वहां पे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि बाहर से अपने पर कोई अटैक हो रहा है, तो स्किन का कुछ ना कुछ इश्यू हो सकता है. ठीक है. और एक बात मुझे यहाँ पे बोलनी थी कि रुब्रिक्स को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम क्रिटिकम के इसमें देखते हैं कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस है, पेरेंट, फ्रेंड, वो 2-3 रूब्रिक है उसमें. तो इसमें भी जैसे हम बोल सकते हैं कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं हम अपनी रेपर्टी को, अपने मटेरिया मेडिका को भी इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक चीज और मुझे मिली थी. और दूसरा जो दूसरी केस में जो है ओवेरियन का, तो ओवेरियन डिसऑर्डर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट जीएनए में बताया गया है, तो वो लॉस कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है.
तो लॉस कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगेन किसी का लॉस, मतलब या फैमिली में कोई किसी के साथ अगेन, ये भी सेपरेशन बोल सकते हैं, लेकिन लॉस होता है मतलब पूरा चला गया वो इंसान। जैसे अभी देखा डेथ, डेथ को हम मेटाफोरिकली भी लेते हैं, लेकिन इसमें लॉस ही होता है, तो उसकी वजह से ये जो भी ओवेरियन डिसीज है वो हो सकते हैं। और दूसरा एक जो इन्होंने बताया लीज बॉर्बे के बुक में मुझे मिला था कि ये जो ओवेरियन डिसीज है, तो ओवेरियन का जो ओवरीज का जो कनेक्शन उन्होंने बताया, तो वो सैक्रल चक्रा से कनेक्शन होता है। और वहां पर जो एनर्जी है, तो जो ओवरीज होती है, तो वो सिंबॉल करती है क्रिएटिविटी, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी उनमें रहती है ओवरीज में। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन एंड क्रिएटिविटी की जो एबिलिटी है, तो वो अगर यहाँ पे कुछ ओवेरियन डिसीज होते हैं तो वो हैम्पर हो जाती है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ओवेरियन का डिसीज आ सकता है, जैसे सिस्ट हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, या फिर जो भी और अदर प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा साइकोडायनामिक्स आजकल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी कनेक्टिविटी हमको दिख रही है अपने मटेरिया मेडिका के साथ। जैसे रेमेडीज को हम डायरेक्ट मतलब इजीली डिसीज डायग्नोसिस पर आ सकते हैं इसकी वजह से, तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, ऐसा लगा, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है इसमें। सो ट्रिटिकम को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ये ट्रिटिकम हम सब जानते हैं, स्टेपल फूड है अपनी, होल व्हीट प्लांट उसको बोलते हैं, होल व्हीट या फिर ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं उसको। तो वर्ल्ड वाइड पाए जाने वाला ये स्टेपल फूड है, और अपनी होम्योपैथी में उसका प्लांट और ग्रेन्स यूज करते हैं। लेकिन इसका बहुत सारा लिटरेचर कुछ नहीं मिला, एक दूसरा भी है। तो वही ट्रिटिकम का जो भी मटेरिया मेडिका मिला है वो हम रेपर्टरी से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि मटेरिया मेडिका में ज्यादा लिटरेचर नहीं मिला है इसका। तो इसके एलिमेंट्स अगर हम समझे, केस के रिलेटेड भी समझ सकते हैं, और फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेमेडी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एंगर सप्रेस, जो सेकंड केस में बोला था ना कि एंगर मतलब उसका गुस्सा जो है वो सप्रेस हो रहा है, तो ये इसके साथ हम इसको केस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और रेमेडी को भी इससे समझ सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, डेथ ऑफ लव्ड वंस, चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, वो तो सीधा ही देखा हमने। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, इमोशनल, और और बहुत सारी चीजों से इसमें एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ग्रीफ है, जेलसी, मॉर्टिफिकेशन है। मॉर्टिफिकेशन मतलब जैसे सर हमेशा बोलते हैं उसको मर मर के जीना, तो मतलब कि अपनी इच्छाओं को दबा के फिर दूसरों की मर्जी से जीना, तो वो खुश नहीं रह पाते लोग, तो इसलिए उसको मर मर के जीना ऐसे हम बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग, एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स एंड स्कॉर्न बीइंग, ये भी है। रिजेक्टेड बीइंग का एक और मुझे इसमें बताना है कि आजकल मतलब जैसे हो सकता है ना कि इंटरकास्ट जैसे मैरिजेस होते हैं, तो वहां पर भी एक रिजेक्शन का फील आता है, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं। सेकेंड इज डिलीजेंस, डिलीजेंस बहुत सारे हैं। तो इसका जो बेसिक जो समझते हैं इसको, कोर डिलीजन उसका है कि मिसअंडरस्टूड चीज, डिलीजन मिसअंडरस्टूड चीज, तो मतलब कि गलत समझा जा रहा है मुझको। तो जैसे मैं इस केस के साथ भी रिलेट कर पाती हूँ, या फिर जैसे रिलेशनशिप्स, सर ने बोला कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अभी एक नई अगर लड़की है, नई नई मैरिज हुई है,
और उसके बाद अगर उसको समझा नहीं जा रहा है उस घर में, या फिर उसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, तो ये उनका मतलब एक कारण बन सकता है बीमारी का। तो ये सारे मतलब ये कोर रूब्रिक्स है। डिलीजन, निग्लेक्टेड शी इज, मिसअंडरस्टूड शी इज, डिलीजन, अप्रिशिएटेड शी इज नॉट, और फोरसेकन हो सकता है, हिंडर्ड हो सकता है। तो ये सारे डिलीजन्स वाले जो रूब्रिक्स है वो इस रेमेडी की कोर फीलिंग तक लेके जाएंगे अपने को। फियर के बहुत सारे रूब्रिक है, आप रेपर्टरी से पढ़ सकते हैं। तो एक और चीज फियर वाली मुझे यहाँ पे मतलब मेटाफोरिकल हम ले सकते हैं उसको। तो जैसे उसने बोला, वो लेडी ने, कि बड़े शहर से आके वो छोटे शहर में आ गए ना, तो वो फियर ऑफ नैरो प्लेसेस हम बोल सकते हैं, मतलब मेटाफोरिकली फियर ऑफ सफोकेशन, मतलब उसको घुटन हो रही है यहाँ पे, तो उससे उसको डर लग रहा है। तो ये कुछ चीजें भी हम केस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इरिटेबिलिटी। तो इरिटेबिलिटी तो बहुत सारी इरिटेबिलिटी है इसमें। कौन कौन से चीजों की वजह से है? इरिटेबिलिटी कन्वर्सेशन फ्रॉम, इरिटेबिलिटी डिस्टर्ब्ड व्हेन, इरिटेबिलिटी इजीली, जो हमने पहले केस में देखा कि बहुत इजीली उसको चिड़चिड़ होती है। इरिटेबिलिटी विथ हिमसेल्फ, खुद से ही चिड़चिड़ होती है। इरिटेबिलिटी ऑफ फ्रॉम इनसिंसेरिटी ऑफ अदर्स, ये मैंने लिया था। इरिटेबिलिटी मेंसेस ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम, इरिटेबिलिटी व्हेन स्पोकन टू, इरिटेबिलिटी ट्रिपल्स फ्रॉम, मतलब छोटी छोटी चीजों की वजह से। इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग वेरीनेस, मतलब जब थकान हो जाती है, या फिर डिस्करेज या हताश जब हो जाते हैं तो तभी भी चिड़चिड़ होती है। और इरिटेबिलिटी व्हेन वर्किंग, मतलब वर्क की जगह पे भी इनको चिड़चिड़ होती है। तो थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि आजकल अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई थी, शायद सब लोगों ने देखी होगी, जो मिसेस करके आई थी। उसका तमिल से उन्होंने इंस्पायर होके वो द ग्रेट इंडियन किचन से लेके उसको उन्होंने रीमेक किया है उसका। तो मुझे लगा कि इसमें हम उसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि कॉमन अगर हमको मिल जाता है फैसेट, तो मटेरिया मेडिका समझने में भी आसानी हो जाती है। तो जैसे एक लड़की अपने घर पे होती है, मायके में होती है, तो उसका ये रहता है ना, वो खुश रहती है, चुलबुली रहती है, उसको खुशी मजा चलता रहता है, वो कुछ भी अपनी मर्जी से करती है जो भी करना होता है, क्योंकि माँ बाप का इतना जनरली इतना प्रेशर नहीं होता है। कुछ कुछ घरों में होता है, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें तो वहां पे वो कैसे रहती है, जो बेटी रहती है वो चेयरफुल रहती है, वाइवेशियस रहती है, उसको अम्यूजमेंट चाहिए होती है, उसकी बहुत सारी डिजायर्स होती है, वो फुलफिल भी होती है, वो फुल ऑफ डिजायर्स होती है, क्योंकि ये करना है मुझे, वो करना है, वो करना है। वो अपने पेरेंट्स से आसानी से बोल सकती है जो भी चाहिए उसको। फिर सोशेबल सोशेबल हो सकती है। सोशेबल मतलब घुल मिल जाती है आसानी से, किसी के साथ भी वो अ, बात कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और फिर एक दो और रूब्रिक्स है, नेचर लव्स, ये इसमें है रेमेडी में। तो ये अगर मिल जाता है तो हम ले सकते हैं। जॉय इन नेचर, मतलब नेचर में भी उसको दोनों तरह से हम इसको बोल सकते हैं। जॉय इन नेचर मतलब उसके नेचर में ही जॉय है, और या फिर उसको नेचर में अच्छा लगता है, जॉय लगता है, मजा लगता है। और यील्डिंग डिस्पोजिशन उनको सिखाया जाता है बेटियों को अपनी सोसाइटी में कि बड़ों का आदर करना चाहिए, या फिर ये करना चाहिए, जैसे कोई भी बड़ा है उसके हिसाब से अपने घर में चीजें चलती है, और वो लड़कियां यील्ड भी कर जाती है, मतलब वो समझती है इन चीजों को और उस हिसाब से वो चलती है। लेकिन ऐसी लड़की की शादी अगर किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हो जाए, या फिर पुराने ख्यालों वाले फैमिली में हो जाए, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से
क्या क्या हम उसको रूब्रिक सोच सकते हैं। तो वहां पे हो सकता है, जैसे बोला कि ये मूवी में भी दिखाया गया था कि वो कोशिश कर रही है कि कैसे मैं खुश करूं अपने हस्बैंड को, अपने ससुर को, अपने सासू माँ को, मैं घर का सारा काम करके फिर वो डिशेस बना के या फिर जो भी अ, अपने हाथ में है वो करके मैं खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका कोई किधर भी अप्रिसिएशन कुछ नहीं हो रहा है। तो वो डिलीजन अप्रिशिएटेड शी इज नॉट। फिर निग्लेक्ट हो सकता है कि उसकी जो इमोशंस है, उसकी जो ओपिनियंस है, उसको कोई हम्म, पकड़ ही नहीं रहा है, कुछ ध्यान ही नहीं कोई दे रहा है, तो वो निग्लेक्टेड वाला फील आ सकता है। और फिर उसकी जो इच्छा है कि कुछ मैं करूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मैंने ये सारा काम घर का कर लिया है लेकिन मुझे अभी जॉब पे जाना है, तो वो सारी चीजें या फिर उसके जो इमोशंस है वो कोई समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसका ये कोर डिलीजन, जैसे मैंने बोला कि ये मिसअंडरस्टूड, मतलब उसको कोई ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारे अगर उसमें ऐसी चीजें आ जाए, डोमिनेशन हो जाए, तो फिर उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो ये इल्डिंग की वजह से या फिर जो ऑब्लाइज्ड वाला जो है अपना, कि दूसरों की विशेष को ध्यान में रखे वो जो काम करती है, अपना खुद का जो उनके प्रति गुस्सा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो सप्रेस कर रही है, तो एंगर सप्रेस्ड। और फिर एक दिन क्या होता है ना कि कितने दिन वो पेशेंस रखेगी, पेशेंस है इसमें, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होता है कि पेशेंस सारे खत्म हो जाते हैं और फिर वो उसका जो एंगर है वो बर्स्ट हो जाता है, एंगर वायलेंट, और फिर वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ मतलब गुस्से में बहुत ज्यादा वो श्रीक करने लग जाती है। तो ये रिएक्शन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है। तो सर और इस पे बताएंगे। So this is all from my side. Thank you so much for patient listening. किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैम एक बार डीडी कर दीजिए सीपिया से। क्या सीपिया सीपिया से मैम डीडी। क्या क्या आपको लगता है सीपीएफ का इसमें कॉमन है? मैम सीपिया में भी अप्रिसिएटेड नहीं होती कि उसे अप्रिसिएशन कुछ चाहिए, और बहुत ज्यादा केयरफुल होती है, करती रहती है अपने फैमिली के लिए, एंड एट अ टाइम ऐसा आता है कि वो फिर इनडिफरेंस में चली जाती है कि अब नहीं हाँ करना। तो तो मैंने जब मूवी देखी थी ना हम मिसेस वाली, तो मुझे भी हम्म, सीपिया का फीलिंग आया था कि बहुत ज्यादा एंगर वायलेंट, एंड वो अब काम हम छोड़ दिया है, और उसके ससुर ने जब वो दरवाजा बंद कर दिया कि उसे हम्म, मतलब इंडिपेंडेंस चाहिए थी मेनली, कि वो हाँ डांसिंग इसमें भी क्लासेस कर रहा इंडिपेंडेंट है। हाँ इसमें भी वो है ना। आगे जाके फिर इंडिपेंडेंट बन जाती है ना, वो सब छोड़ के फिर वो यस। अपना खुद का जो पैशन है वो हाँ हाँ। इंडिपेंडेंटली, वो क्योंकि उसके घर वाले मायके वाले भी बोलते कि तुम जाओ सॉरी बोलो उनको, लेकिन नहीं बोलती ना वो, हम्म। खुद पे यस अपना मैम। इस पे अपने मैम वो पैरों पे खड़ी दबाते हो जाते जाती हैं, सप्रेस किए है। जाती है, सप्रेस किए जाती है, हाँ तो बहुत सिमिलर लगा। तो प्लीज आप एक दो पॉइंट में टीडी कर देना। See, the basic difference between Sapia and Triticum is Sapia का ब्रेकअप पॉइंट क्या है? सेपिया कहाँ ब्रेक होती है? At what time does Sapia break? सर एक्चुअली मुझे उतना मालूम नहीं है, मैं 4th ईयर में Okay, हूँ so अभी तो। okay, तो दो पॉइंट्स होती है। यहाँ पर हेलो सर। सेपिया ह्यूमिलिएटेड होती है। हेलो सर, शेपिया को रिसिप्रोकेशन जब नहीं मिलता तब वो ब्रेक होती है। ओके ओके अविनाश, नाइस टू हियर यू आफ्टर लॉन्ग। देखो सेपिया दो जगह पे ब्रेक होती है। एक जगह है जहां पर वो पुअर हो जाती है, ठीक है, मतलब जब वो कर नहीं पाते। सेपिया का बेसिक क्या है? डांस। सेपिया को जो अपना जो हर क्या है ना, उसमें डांसिंग विद सेंस ऑफ ग्रेट रिदम, टू रेमेडीज सेपिया एंड कार्सिनोसिन। तो सेपिया का जो रिदम में चल रहा है ना, सब एकदम मस्त लयबद्ध तरीके से सेपिया काम कर रही है पूरा। जो भी कर रही है, इंडिपेंडेंट है, वट घर का काम कर रही है, जो भी कर रही है, वो जब रिदम ब्रेक होता है, कर नहीं पाती है,
वो जो पुअर में जाती है तब, क्योंकि सेपिया इज नॉट देयर इन इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। अब सारी रिपोर्टरीज खंगाल लो पूरा, शायद से डाला होगा, बट बेसिकली सेपिया इज नॉट देयर इन से irritability pain during. Sepia is there in irritability exertion from. ओके मतलब exertion मतलब क्या, जब उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना, जब उसको जोर लगाना पड़ रहा है काम को, जो काम वो करती थी पहले वो काम अब उसके लिए exertion बन रहा है ना। द डिफरेंस बिटवीन exertion and exercise is what? Exertion tires you, exercise relaxes you. ओके, exertion आपको खत्म करता है, exertion kills you and exercise gives you life. That's the difference. ओके, तो जहां पर exert करना पड़ रहा है सेपिया को, वहां पर सेपिया टूटेगी। सेकंड, जहां पर वो ह्यूमिलिएट होगी, ओके, फियर ह्यूमिलिएशन में अगर आप देखो सेपिया है, तो जो भी आपके डर है वो जब आपको फेस करना पड़ता है ना, तब आप ब्रेक होते हो। जैसे फियर स्नेक्स है मान लो, तो आप टूटोगे कब, जब आपके सामने सांप आ जाएगा। तो ये ब्रेकअप, कोई भी रेमेडीज का अगर ब्रेकअप पॉइंट समझना है ना, तो उसके फियर्स को समझो, ठीक है। फियर सफरिंग फास्फोरस में है, तो फास्फोरस टूटेगा कब, जब सफरिंग आएगी तब। ये एक लॉजिकल आप समझो, हाउ टू अंडरस्टैंड द रूब्रिक, हाउ टू रीड बिहाइंड द सिम्टम्स इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फियर्स and delusions. So delusions is going to tell you what sort of person he is. जैसे अगर आप देखो औरममेट में दिया है delusion, he has neglected his duty. मतलब क्या है कि औरममेट is a duty conscious person. ओके, वैसे ही fear narrow places, argentum nitricum, मतलब क्या, या triticum vulgaris, मतलब जब narrow place आ जाएंगी, जब उस पर पूरा attention आ जाएगा, when the things will come close, narrow is like this is your horizon. Okay, like these are the let us say कि इतने, there are 10-20 people in the room, then 20 के बन गए 19, 18, 17, 16, करते 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 जब एक आप पर आएगा, so the things are getting narrower. This is fear narrow places. So when the attention starts coming to you, or when the things start becoming narrow, you are going to break. That is how fear humiliation if you see in sepia. Reciprocation का problem जो है ना अविनाश, वो कार्सिनोसिन में आता है, डल्कमेरा में आता है। ओके, डल्कमेरा को भी रेसिप्रोकेशन चाहिए होता है, इसीलिए वो डैम्प से प्रॉब्लम आता है ना। हेटेड हस्बैंड में कब जाता है डल्कमेरा, या इवन हेटेड वाइफ में भी हेटेड ऑफ वाइफ करके रूब्रिक नहीं है, क्योंकि इट्स अ कॉमन सिम्टम। बट इवन देन when you make somebody superior, when you actually is expecting something from somebody and then that doesn't happen. So when you expect something from somebody greater, like love, like wealth, like security, like food, like nurturing, you become she and the other person becomes he. Okay, so hatred of wife bhi raha kisi mein. If the wife is cold, if the wife is very damp, if the house atmosphere is very damp, डू थिंक अबाउट टलकमारा। ओके, तो ये वहां पर आएगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। तो डीडी करना बहुत आसान है। ओके, मैं जानता हूं डीडी का पंगा कब आता है, पता है, जब आपके दिमाग में इमेजेस बनी होती है रेमेडीज की। तो मेरी सबसे फिर से अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, डोंट मेक इमेजेस ऑफ रेमेडी। ओके, जैसे अभी मानसी ने एक आपके सामने बहू की इमेज दी है, मैंने ये रेमेडी जब पढ़ाया था तो सास के बारे में बताया था, बेटी के बारे में बताया था, वो दैट इज जस्ट टू रिमेम्बर द रूब्रिक्स। ओके प्लीज, जैसे हमने रामायण महाभारत गीता, ये कुरान किस लिए है, ये सिर्फ हमको याद रखने के लिए कि ये डिक्टम्स है, इस पर हमको चलना है, दैट्स इट। उसको लेकर के दुनिया मत बना दीजिएगा कि डोंट मेक योर वर्ल्ड दैट थिंग, like sepia is that, no, or triticum is bahu or sas, no. Okay, it can be commonly found in that situations. Okay, that is only to make you understand or remember the rubrics, that's it. Okay, तो ये डीडी के पंगे में हो सके तो पढ़ो मत, लेकिन अगर आपको पढ़ना है चीजों को, तो ये मैं जो बताया आज, जो भी फियर्स है वो निकालो, वो सब चीजों को लेकर पेशेंट आपके पास आता है, वहां पर वो ब्रेक होता है। ठीक है, और कितनी हद तक ब्रेक होगा, कितनी इंटेंसिटी में ब्रेक होगा, वो फिर आपको बताएगा कि ये रेमेडी कहाँ जा रही है ना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। डॉक्टर लियाकत, एक सेकंड सर।
सॉरी बेटा, बहुत बड़ी इसको पहले बेटा एक समझो इस बात को, इस सर फोरम सर को बहुत प्यारा बनाया तुमने, बड़ी मेहनत की है, राइट। इस बच्चे को कहो, फोर्थ ईयर का वो स्टूडेंट है, वो एक उसको कहो अभी सवाल पूछने का समय नहीं है बेटा, सॉरी। हेलो, आर यू सर देयर? सर आई एम देयर। हाँ, उनको समझाओ बेटा कि डॉक्टर सहगल कहते थे पहले 5 साल प्रैक्टिस कर लो, अभी हाँ थ्योरी पे है वो बिल्कुल। फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, राइट। उनका हक है, लेकिन उनको कहो कि आप किससे, आपने जो छोटी अपनी नैरो लेंस बना ली, उन आंखों से आप देख के अब सवाल पूछ रहे हो। बहुत सुंदर आपने कोशिश की। सीपिया का अपना एक रेंज है। अजीब कहानी है, जरा डालो जरा। सीपिया पुअर है, आपने कहा ना, बहुत बेसिक फील है उसके अंदर। फिर भी वो रेस्ट नहीं कर सकता जब तक, रेस्ट कैन नॉट अनटिल अनलेस थिंग्स आर इन ऑर्डर। रादर रेस्ट एग्रीवेट करता है। 3 रुपए की डालो, आपके पास सीपिया अलग खड़ी होगी। डालो जरा इसे। और उसका रास्ता ही नहीं था। जो मानसी बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, वो वंडरफुल बेटा। हाँ, पहला डालो। पुअर की फील है उसमें। पुअर होते हुए भी रेस्ट नहीं कर सकती, मुसीबत है। रेस्ट कैन नॉट अनटिल थिंग्स। डेल्यूजन पुअर शी, उसके पास उतना ना, उतनी वेल्थ नहीं है। उसके पास एक फीलिंग है, हमेशा उसको लगता है यार ये कम है, ये ठीक नहीं है, सिख हूं, कंप्लेन। हर तरीक में से एक आवाज आ रही होगी जैसे वो पुअर है, थका दिया, मार दिया, है ना। तो पुअर की एक फील आती है, डिल्यूजन इसका फील है पुअर की। लेकिन रेस्ट कैन नॉट, फिर भी वो रेस्ट नहीं कर सकता। और रेस्ट रादर एग्रीवेट करता है। 3 रुपये डालो, तुम्हारे पास और कोई दवाई नहीं बचेगी। उसकी अपनी एक स्टेट है। और नेचुरली जो रेस्ट नहीं कर पा रहा है, जो रेस्ट उसको दिक्कत में आ जाता है, वो क्या होगा, एग्जर्ट करता रहेगा और थकान आती जाएगी, तो चिड़चिड़ा होता जाएगा, इरिटेबिलिटी। आखिर क्या होगा, वो कहती मैं सोई नहीं सर, आंख बंद कर ली, अंदर मुझे पता था पर मेरी आंखें मैंने बंद कर ली। वो इंडिफरेंट स्टेट उस बच्चे से कहो तब आएगी। 3 रुब्रिक डाल दिया आपने। जी सर। क्या बचा? पुअर, रेस्ट कैन नॉट अनटिल एंड थिंग्स आर इन ऑर्डर, रेस्ट एग्रेवेट्स। बड़ी अजीब सी बात है। जी सर। आपने सबने लगाया रेस्ट डिजायर चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को क्वाइट चाहिए। इसको इसको तो बल्कि रेस्ट और तंग करता है। अब ये समझ, ये जिस दिन कीड़ा समझना है, मैं फिर मैं सीपिया पढ़ाऊंगा, है ना, अपने तरीके से सीपिया पढ़ाऊंगा। सही सर। सीपिया को 30 दिन लगे थे, 20 दिन लगे थे, 15 दिन लगे थे। तुम कहते हो यार बहुत चमत्कार बेटा तुमने कर लिया। जब जब वो प्रेम मोहंती इनकी क्लास होती थी, तो कलकेरिया काव को मैंने 20 दिन पढ़ाया था, 20 डेज। माशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये क्योंकि एक एक जो इंग्रेडिएंट है उसका, अरे उसका अपना जीरे का स्वाद अपना है, अदरक का स्वाद अपना है, वो जब आएगा, और उनकी अपनी रूप है, राइट। जी सीपी अब समझ में आ रही, सिंपल सी बात। वो पुअर सर। होते हुए रेस्ट नहीं कर सकती, ये मुसीबत है। ये हीरोइन के साथ, यहाँ टक्कर हीरोइन के साथ होगी उसकी। पहली 2 रुब्रिक डालोगे तो हीरोइन मिलेगी। जी डालो 2 रुब्रिक, और हटा लो जरा जी रेस्ट सर। डिजायर। रेस्ट एग्रीवेट को हटाओगे तो हीरोइन आ जाएगी। नई रेमेडी इनको लगे यार ये क्या आ गया। अब हीरोइन पुअर कैसे है? जी सर। ये रास्ता अलग होगा। सॉरी, मेरा दिन नहीं है। मानसी बहुत अच्छा पढ़ा है। और मैं तो किस लिए आ जा रहा हूँ कि मुझे लगा यार इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे को दोबारा एबीसी पढ़ने में इतना आनंद आता है जब बच्चे मुझे बताते हैं डैड नॉट ओनली ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। और मानसी तेरे लिए ट्राइटिक वीजी का गिफ्ट, ठीक है। 2 रुब्रिक डाल, और तेरे को लगा है मेरे किस केस ने मुझे क्या सिखाई थी ट्राइटिक, हाँ हाँ। किसी ने नहीं दिया होगा। फियर ऑफ फ्लाइंग, वो बंदा आया कि सर मुझे ना फ्लाई तो करना है ऑस्ट्रेलिया, मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब आम मिल जाते हैं केसेस फ्री ऑफ फ्लाइंग, राइट। और मैं कहा यार मुसीबत क्या है, कहती है सर जैसे वो डोर, मुझे लग डोर खोल दे तो मैं बैठ जाऊंगी हवाई जहाज में। लीस्ट क्लोज फियर, डोर लीस्ट क्लोजिंग ऑफ, ये 2 रुब्रिक। मतलब मुसीबत क्या थी कि दरवाजे बंद बंद हो, फिर मैं जहाज में चढ़ जाऊंगी। अब दरवाजे कैसे खोल सकते हैं जहाज के भाई? 2 रुब्रिक डालो। फियर फ्लाइंग ऑफ, फियर डोर लीस्ट क्लोजिंग। जरा सा भी दरवाजा बंद हो, डोमिनेशन की स्टेट इसकी वहां आएगी। डोमिनेशन में सीपिया भी पड़ी है कि जहां इसका दरवाजा बंद होगा ट्राइटिक का, उसे लगा यार ये बड़ा दिक्कत होगी, दरवाज डोर ही बंद हो गया, तेरे लिए नहीं रास्ता है बेटा ये, मैं फ्लाइंग से ले जा रहा हूँ तुझे। डालो फियर फ्लाइंग एरोप्लेन, मिल गया। सर। दिख रहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी आंखें इतनी छोटी हो गई हैं, मैं पता नहीं कहाँ बैठा हूँ। सुनते सुनते मैं वापस आ गया, है ना, कहीं और था। कितनी जी दवाइयां सर। हैं इसमें?
12 20 दरवाजे वही है। नहीं नहीं 12 नहीं, 20, अगर 20 डोर क्लोज को मिलाते हो तो कितनी बचती हैं यार? एक एक ही एक ही है एक ही सर। ट्रिटिक एक ही काउंट। ट्रैफिक बचती है ना। इस रास्ते से तो यस पहले नहीं गए जी थे, ये मत कहना सर ने कुछ नया नहीं दिया। इस रास्ते से तो नहीं गए थे ना पहले। सबने ट्राइटिक की जान निकाल रखी है, और मैं सबसे पहले हेलियोस वालों से ये जाके यूके से लेके आया था, लोगों को दवाई मिलती नहीं थी, और मैंने वो शीशा बांट के बना के बांटी जी थी। सर। 2010 की बात है, 12, हाँ ना, 2010, कितने साल हो गए, 15 साल पहले ट्राइटिक की उसकी दवाई मेरे पास थी ओरिजिनल की, क्योंकि बाकी तो सब पता नहीं क्या बेचते थे। तो मैं लाया, सबसे पहले प्रेम को दी, इसको दी, सब जिसको दे सकता था लिक्विड बना बना के सबको बांटा। तो ये पुराना रास्ता कितना छोटा रास्ता दिख रहा है, क्योंकि प्लेन में जाते थे, बंदा कहे यार जी दरवाजा खोल दो, घबराहट हो रही, नीचे उतार दो, अबे यार बड़ी मुसीबत हो गई। दिख रहा है ये? अब ये कहीं और भी काम आएगा। दरवाजा जरा सा भी बंद होने से जान निकलनी है। डोमिनेशन का लेवल जब, मतलब डोमिनेशन की भी तो एक स्टेट्स होती हैं, बिल्कुल। कितना डोमिनेट हो गया। अभी इसने ऑपरेशन लिया था, अभी अब ले ले एंजाइटी ऑपरेशन फ्रॉम, कि यार दबाव पड़ रहा है। क्या बोलते हैं प्लेन में, जब प्लेन में हवा का दबाव कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ऑपरेस्ट हो बढ़ता गए, है जी। सांस नहीं आएगी, वो ऑपरेशन हो गया, एक वो तरीका हो गया। जी मानसी ठीक है बेटा, सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं बोलना था, पर मुझे लगा यार नहीं, चेरी तो देते, तू केक बनाएगी तो चेरी तो सर लेके आएंगे, चलेगा ये? थैंक यू ठीक है सर। बेटा, दिक्कत तो नहीं है, नहीं अब नहीं ऑलवेज विथ यू सर। नहीं बेटा, तू ऑफेंड तो नहीं हुआ, इट इज योर, ये तेरी बेटा, तेरी किंगडम है, मेरा अदर कह रहा, मैं तो एक भटकता हुआ मुसाफिर हूँ, कोने में बैठ जाता हूँ आके, सर सर है ना। सर तो क्या ये कर रहे उस हैं आप? बच्चे को समझाना कि बेटा अभी जी सवाल पूछने का टाइम नहीं है, इतनी जल्दी इनको सवाल मत पूछने दो। हाँ, अब एब्जॉर्ब पिताजी करो। पिताजी पूछने नहीं देते थे, बोले बारिश हो रही है ले लो पहले, जी जिस दिन सवाल पूछने लायक हो गए उस दिन मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा। दैट बिल्कुल। वाज हिज, और विजडम थी, वो मास्टर एक विजडम से बोलते थे। अब हर एक को लगता है यार उसको अपना लगना, और अपना एक सवाल क्लियर करने के चक्कर में आधा सेमिनार आधा घंटा पीछे चला जाता है। सर, एक्चुअली। दैट होता क्या है बेटा, आपका एक कोरम है, आपका एक रास्ता है, राइट। इनको वो अपने सवाल रखो, आपका हक है। अब हर एक को अपनी एक छोटी सी क्लैरिटी चाहिए, उसका केस फंसा है वो उतना समझ लेगा, बाकी जो आप समझा रहे हो वो उसने 95% वेस्ट कर देना है, उसमें उसका नुकसान एब्सोल्युटली। है, वो उसका नुकसान है। उसको समझाओ कि अगर तुम्हें लगेगा यार सर रोक रहे हैं, अगर आपके एक सवाल का जवाब जो आपको चाहिए, अक्सर लोग क्या पूछते हैं, सर जो भी हाँ आप पढ़ाना लोगे वो उसको अपने रिलेटेड बीमारी होगी तो वो सवाल पूछ लेगा। अब वो उसी में उलझा हुआ है, जब तक आप जवाब नहीं दोगे बाकी जो आप पढ़ा रहे हो कुछ नहीं सुनते। तो मैं बोलता हूँ मैं तेरा जवाब कुछ दे लेना नहीं दूंगा, सर। सॉरी, है ना बेटा। सही है। चल बेटा, राइटिंग बहुत पुरानी दवाई थी, बड़ा सही है मस्ती सर। से इसको आई, है ना। चल, मैंने जब पढ़ी तो मेरे मेरे को वो बन गया जिसने जी प्रूविंग की थी, जी ऑलिव सेकिनम की जिसने प्रूविंग की थी, मुझे उससे मिलवाया गया जर्मनी में। बड़ा मजा आया, हाँ। वो उसकी अलग यात्रा थी। मैंने बोला यार तूने सिम्टम कैसे लिए ऑलिव, और पेड़ दिखाया उसने मुझे ले जाके। अब इनको क्या बताएं, जब तक तुम प्रूवर नहीं करोगे दवाई की, ये तो कलेक्शंस हैं जो तुम कर रहे हो, कर लोगे, बड़ी सुंदर कलेक्शन है जी साड़ियों की, वो कैसे जचानी है, वो बैलेंस कहाँ से लाना है, वो दुनिया अलग होगी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई बात। फियर ऑफ फ्लाइंग इन सर। एरोप्लेन, है ना। फियर डोर क्लोज शट, लीस्ट, अब समझ लेना लेस। लीस्ट, सीपिया की स्टेट ये नहीं आई है। सीपिया ने तो रेस्ट ही नहीं किया, एग्जॉस्ट कर लिया, वो कहाँ दुनिया उसकी अलग है। सही रेस्ट है। कैनॉट अनटिल एंड थिंग्स आर इन ऑर्डर एंड रेस्ट एग्रेवेट। इस पे दो डुबरी की डाल तू खाली, क्या रेस्ट, एक आदमी को तुम ओरिजिनली क्या पाओगे कि जब वो थका हुआ है, वो रेस्ट नहीं कर पा रहा, और उसका पुअर है, इरिटेबिलिटी हो रही है एक जरा सी एग्जर्शन से, वो खिंच रही है यार, तू रेस्ट कर ले, वो बड़ी, जी लेकिन रेस्ट से उसकी तकलीफ होती सही। है, रेस्ट एग्रेवेट्स। चल बेटा, थैंक यू, सर सॉरी है, मैं माफी सर चाहूंगा, मैं रुक नहीं पाता, मैं आ जाता हूँ, माफी चाहता हूँ भाई। सर सर आप माफी मत मांगा कीजिए, आप रोकिए मत अपने आप को। संभाल के रखिए बस। है ना, हाँ ये तू संभाल लेते, अब लोगों ने तेरे चैनल पे डाल दिया कि सर अपना अपना ट्यूमर ठीक क्यों नहीं करते, अब तूने ठीक अरे करना भाई। वो पागल था सर, छोड़ो। नहीं 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 यार, रखे ना, ये मजा नहीं आएगा तो तुम्हें कौन, तो आपको ये यथार्थ याद दिलाता है बेटा, ये तुम्हें एक्चुअली। धरती पे रखेगा। वो जो थप्पड़ पड़ता है वो तुम्हें दोबारा स्टिमुलेट करता नहीं, लेकिन नहीं यार मुझे लगा अभी भी यूजफुल हूँ बेटा, चिंता नहीं कर, कोई बात नहीं, है ना। हाँ आधे लोग ऐसे हैं जो बेचारे चल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने चमत्कार कर दिया बैठ के व्हील चेयर के ऊपर, जिनके कंप्यूटर्स तुम आज चला रहे हो।
चल, ऑलराइट। थैंक यू सर। ओके मानसी बेटा, तेरे लिए बेस्ट ब्लेसिंग थी, याद रखना तेरे केस के साथ। थैंक यू Thank you. सर। जी जाऊं मैं, थैंक यू बाय सो बाय। ठीक है, Thank you, ठीक है, sir. थैंक यू सर। खत्म है ना? For अब the और तो कुछ नहीं है। आई sir. कैन गो एंड हैव, मैं नहाया नहीं यार, Thank- बैठा हूँ जाऊं। ऑलराइट, Yes, जी sir. Yes, sir. Please, 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 sir. Sir, sir. थैंक यू सर। Thank you for the pinch of salt in the food. Sir. Thank you. That is really the salt that adds to the taste and to the essence. And we, as we all know, being homeopaths, that how essential the salt is for our body and for our existence. If you see, guys, the terminal stages of human being, where, because I've been lucky, fortunate, not lucky, that we treat a lot of terminal cases where the patient is on deathbed. Most of the times, कोई बता सकता है कि what is the reason of what is the pathology, क्या क्या होता है टर्मिनल स्टेज में, आपको पता है? पेशेंट जा रहा है, उसके साइंस क्या होते हैं पता है हॉस्पिटल में? अनीता, पद्मश्री, पद्मश्री बिकॉज पद्मा का हॉस्पिटल है, पद्मा बोल सकती है? कोई बोल सकता है टर्मिनल स्टेजेस में हाउ द पेशेंट डाइज, क्या क्या होता है? चलो, और एक, नहीं, देखो पेशेंट्स को ना हाइपोनाइट्रीमिया हो जाता है, सोडियम कम हो रहा है, आप लोग सुनते हैं ना रिश्तेदार का, पेशेंट का क्या हो रहा है, सर सोडियम लेवल कम हो गया, सर पोटेशियम कम हो गया, है ना? नमक जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि मैंने आपका नमक खाया है, बोलते हैं ना अपन, वो कहावत है नहीं आती, जितनी भी कहावतें हैं, जितनी भी गालियां हैं, बहुत साइंटिफिक है। आप अगर देखोगे चीजों को, किसी दिन मेरे सेशन में बताऊंगा, क्योंकि अभी मोमेंट्स में किया तो गालियां नहीं बोल सकते, लेकिन जो सेइंग्स है उसमें होता है ना कि नमक, तो सर की जो बात होती है ना वो नमक होता है। बहुत 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 गहरी चीजें होती है। हम लोग फॉर्चुनेट है कि गुरु जी हमारे साथ है ना, उनकी ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। थैंक यू सो मच संजय सहगल सर, थैंक यू मानसी, वोट यू प्रियंका। Thank you so much, Mansi, and thank you, Sehgal sir, Liaquat sir. It was a wonderful session and wonderful remedy. Both the cases were very good, and we see in day-to-day practice, and we can relate to it. And आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया साइकोडायनामिक्स के बारे में, और कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग डिसीज को सिम्टम के साथ में, या कैसे हम लोग और अंडरस्टैंड कर सकते हैं पेशेंट्स को थ्रू द डिसीज, थ्रू द पैथोलॉजी। ये भी हम लोग नया प्रियंका, सीखा। can I add something? Yes, sir. Again, one pinch of salt from my side to this lecture. जहां पर भी आपको ट्रिटिकम का पिक्चर लगे, ठीक है, प्लीज एक चीज का आप ध्यान रखें, कहीं पेशेंट को वीट एलर्जी की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर आपको बच्चों में अगर थोड़ा सा ट्रिटिकम का पिक्चर लग रहा है, तो टाइप 1 डायबिटीज और वीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी का भी थोड़ा ध्यान रखें, because most of the times in gluten allergy patients or in type 1 type of diabetes in children, picture of triticum vulgaris comes, many of the rubrics of triticum vulgaris come. So in that case, just check whether the patient has gluten allergy or whether he's developing gluten allergy 1, whether he's going towards type 1 diabetes 2. These two things, please remember, this is something very, very important that I've seen in my life, because I've been treating type 1 diabetes patients like day in, day out. And gluten allergy though is curable, of course, 100%. Type 1 diabetes, yeah, it can come to type 2, but very difficult. मतलब वाट लग जाती है हम जैसों की। मतलब जो हम लोग जितने एग्रेसिव प्रैक्टिशनर में हूँ, aggressive doc practitioners like me who are not scared of anything, but ये चीज को आप प्लीज थोड़ा सा सब लोग याद रखिएगा, ये यूट्यूब पर भी आएगा, इसको एडिट नहीं करना मानसी। Okay, remember this thing, wherever you get some picture like triticum in children especially, just see to it whether they are developing gluten allergy or type 2 diabetes. Okay, yeah, Priyanka, sorry, and you both are looking very nice girls. Yeah, done, khatam thi gaya. Thank you very much, God bless. Thank you थैंक so यू। much.
थैंक यू सर। और ट्रिटिकम मतलब हम लोग डे टू थैंक डे यू सर। प्रैक्टिस में आजकल ये बहुत जल्दी हम से लोग को यूट्यूब पर मिल अपलोड रही कर है। दो, आज क्या जाए यूट्यूब पे यस अपलोड। यस। सो थैंक यू सो Yes. मच टुडे। आज हम लोग का फर्स्ट सेशन था। अभी नेक्स्ट 7 days हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। सो टुमारो मॉर्निंग आल्सो ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन। डॉक्टर पद्मश्री शेंडे विल बी देयर। और ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे और सेलिब्रेट करते रहेंगे वुमेन्स वीक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सहगल सर। थैंक यू लियाकत सर। Thank you. थैंक यू मानसी। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। चलो थैंक यू बाय। मनीषा हैव अ मैडम। नाइस डे। आज ही यूट्यूब पर अपलोड होना चाहिए मानसी, डेली द रूब्रिक शुड बी अपलोडेड। वुमेन्स डे, हम लोग मेंस डे सेलिब्रेट नहीं करते, हमारा मेंस डे सेलिब्रेट करो, हम उसी दिन यूट्यूब पे डालेंगे। वाह रे वाह। चलो थैंक यू बाय। मनीषा मैडम।